ناظرین، میں ہوں عثمان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں مخاطب عثمان خان کے ساتھ۔ ناظرین، الحمدللہ آج ہمارا چوتھا پروگرام ہے اور میں ان تمام دوستوں کا شکر گزار ہوں جو پرسنلی مجھ سے مل کر اور سوشل میڈیا پر میری حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ میں ان تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج ناظرین ہم مخاطب اسپیشل سے پروگرام کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب کہ آج ہم کسی موضوع پر بات نہیں کریں گے، نہ ہی ہمارے پروگرام میں آج بحث و مباحثہ ہوگا۔ آج ہم ایسی شخصیات سے آپ کی ملاقات کروانا چاہتے ہیں کہ جو ارلا کی چھپی ہوئی شخصیات میں سے ایک ہیں۔ آج ہمارے ساتھ 3 اہم شخصیات موجود ہیں جو میں اگر کہوں کہ ان کا بچپن سے چولی دامن کا ساتھ ہے تو شاید غلط نہ ہوگا۔ تینوں ارلا یوتھ یونین جس کے پلیٹ فارم سے ہم آپ سے مخاطب ہیں، تینوں ہی ارلا یوتھ یونین کے وجود میں اور سپورٹس کے حوالے سے جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں ارلے میں، تینوں ہی اس میں ایکٹیو رہی ہیں۔ اس کے علاوہ تینوں ہی مل کر ارلا میں ایک ادارہ چلا رہے ہیں الف پبلک سیکنڈری اسکول کے نام سے۔ شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں آج سب سے پہلے کاشف قمر صاحب، توقیر حسین پاشا صاحب اور شعیب اجمل صاحب۔ سر ویلکم ٹو دا شو۔ کیسے مزاج ہیں سر؟ الحمدللہ، اللہ پاک کا کرم ہے۔ آپ ٹھیک ہے عثمان؟ الحمدللہ۔ سر آپ؟ بالکل الحمدللہ، رب کا شکر ہے کہ ہم ٹھیک ہیں۔ شعیب اجمل صاحب؟ اللہ پاک کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہم بیٹھ کے آج گپ شپ بھی ہو جائے گی۔ تو تینوں ہی ماشاءاللہ تقریباً بچپن سے ہی تینوں ایک ساتھ ہیں۔ آج چوتھے شخص کو بھی دعوت دی تھی شہنشاہ قاوز صاحب، وہ اپنی پرسنلی جو مصروفیات ہیں ان کی وجہ سے پیش نہیں ہو سکے، تو خیر کوئی نہیں، آپ 3 تو ہیں نا۔ ہاں، کوئی نہیں، موسٹ ویلکم۔ سر کاشف قمر صاحب، تقریباً تینوں ہی شخصیات ارلا یوتھ یونین کے بانی ارکان میں سے ایک ہیں اور تینوں ہی کی وجہ سے ارلا یوتھ یونین کا اگر میں کہوں کہ وجود عمل میں لایا گیا تو شاید غلط نہ ہوگا۔ کس کے ذہن میں سب سے پہلے یہ خیال عمل میں آیا اور کس نے سوچا کہ یہ تنظیم بنائی جائے اور اس پر کام کیا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں عثمان آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہم جیسے ناچیز کو اپنے قیمتی پروگرام میں دعوت دی، اس کے لیے آپ کا شکر گزار ہوں۔ دوسری بات، تمام دیکھنے والے ناظرین کا بھی شکر گزار ہوں۔ جہاں تک آپ کا سوال ہے عثمان کہ ارلا یوتھ یونین کا وجود کیسے آیا، کون سی وہ پرسنالٹیز تھی جنہوں نے سوچا کہ شاید ارلے کے لیے ہم کچھ کر سکتے ہیں، تو اس حوالے سے سب سے جو اہم نام ہے وہ ڈاکٹر راشد خلیل صاحب کا ہے۔ ماشاءاللہ ان کی ذہانت، ان کے نظریات اور ان کے دل کے اندر جو ارلا اور پاکستانیوں کے لیے درد ہے وہ دیکھنے کے قابل ہے۔ تو سب سے پہلے جو خیال آیا کہ ارلا کے لیے کچھ کریں، ارلا کی غریب عوام کے لیے، متوسط طبقے کے لیے، اور سب کو برابر لے کر چلیں اور تنازعات سارے ختم کریں، یہ وہ آئیڈیالوجی تھی جو ڈاکٹر راشد خلیل صاحب کے دماغ میں تھی، اور الحمدللہ آج ہم اس پر فائز ہیں اور اس پر کام کر رہے ہیں، اور ارلا یوتھ یونین کی اچیومنٹس ابھی شروعات ہیں۔ انشاءاللہ آگے بہت کچھ کرنے کو ہے، اور ہم بھی ایز اے نیشن، ایز اے یوتھ نیشن سارے فی الحال تو اسٹڈی والے ماحول میں ہیں، یعنی کہ اتنا پاور نہیں ہے کہ ہم کچھ کر سکیں، لیکن جذبہ ضرور ہے اور کریں گے ضرور انشاءاللہ۔ جی سر توقیر حسین پاشا صاحب، ارلا یوتھ یونین کے قیام کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ 14 جون 2014 میں جو عمل میں لایا گیا قیام، اس میں ایک شاندار جلسہ بھی ہوا تھا، اس کے لیے کس نے پلان ترتیب دیا تھا اور یہ کس کے ذہن میں خیال آیا؟ عثمان صاحب، پہلے تو ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ کے اس توسط سے آج ہم اس پروگرام میں شریک ہیں۔ تو مجھے کل کی طرح بات یاد ہے، یہ 12 جون تھا، 2012 تھا، تو اس دن ہم نے ایک پروگرام بنایا تھا، تو وہاں ایک اور بھی پروگرام تھا کھانے کا تھا، ادھر ہم نے ایک پلان بنایا کہ ہم
एक जलसा करें। जो जलसे का मशवरा था वो मैंने दिया कि हम जो है ना किसको बुलाएं, फंक्शन हो, और आप जानते हैं कि उस फंक्शन में कौन थे और कोई और नहीं था, ठीक है ना। हम वैसे हम इस नौजवान जिस इलाके में रहते हैं इधर ज़्यादा मशहूर हैं किस फंक्शन को कैसे लोग सुनते हैं, ज़्यादा किस पे फोकस करते हैं। हम उसी यानी कि आप कहें नट, हम वही मशवरा हमने ही दिया था कि इस तरह का फंक्शन हो, हर स्टूडेंट जो है ना वो आके अपनी जो सलाहियत है वो दिखाए। तो सब बच्चों ने, शफीक खां थे, डॉक्टर आशिक थे, बहुत से बाकी भी बच्चे थे, अपनी बेहतरीन सलाहियत का जौहर बनवाया था। माशाल्लाह, और बहुत ही शानदार हुआ था वो दिन। हमें भी याद है, हम छोटे थे शायद, और बड़ा ही कमाल। आप दोनों ने कहा कि हमारे लिए ये खुशी की बात है कि मैंने दावत दी। ये मेरे लिए ऑनर की बात है कि मैं आपके साथ बैठा हूँ, बहुत ही ऑनर की बात है, बहुत ही ऑनर की बात है। शोएब अजमल साहब, माशाल्लाह, अलिफ पब्लिक सेकेंडरी स्कूल एक इदारे का नाम है। एक छोटे से कस्बे में इतना बड़ा इदारा चलाना, सबसे पहले इसमें शुरू में कितनी मुश्किलात आईं और आपने क्या सोचा? पाशा साहब प्रिंसिपल हैं, उनसे भी जानेंगे आप क्या कहेंगे अलिफ पब्लिक सेकेंडरी स्कूल के बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम नशरा लका सदरका काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल राशि वल मुर्तशी कलाम फिन्नार। यहाँ तक सबसे पहले मैं भी आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतनी बड़े हस्तियों के साथ हमें भी चंद लम्हात जो गुजारने का मौका मिला है। तो जहाँ तक स्कूल की बात है तो ये स्कूल का आइडिया तो काशिफ कमर साहब ने दिया था कि इतने बड़े इलाके में एक स्कूल की ज़रूरत है, तो ये काशिफ साहब है। बाकी जहाँ तक ये इदारा है इतना बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह नाम कर चुका है और रिज़ल्ट भी इसके अच्छे आ रहे हैं, तो इसमें जो है वो ना नज़र अब्दैन वो तौकीर साहब प्रिंसिपल साहब हैं। ये अपनी जो सलाहियत है ये बड़े बीबे बंदे हैं, बड़े माशाल्लाह काबिल है, जो काम करें तो उन्हें अपने अंजाम करते हैं माशाल्लाह। ये सारा कुछ अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ। अलिफ पब्लिक सेकेंडरी स्कूल के हवाले से मेरे जहन में ख्याल आया जब मैं मतलब जगोई पढ़ाता था कि हमारा इलाका बिल्कुल क्लियर कट है, बिल्कुल ज़ीरो। बच्चे फिर भी पढ़ रहे हैं, बच्चियाँ बिल्कुल नहीं पढ़ रही हैं। हर उड़ला का हर बंदा अपनी बच्चियों को तालीम दिलवाने के लिए, यानी कि मैं बताता चलूँ कि अलिफ पब्लिक से पहले लोग चाहते थे कि अलीपुर में ही बच्चा जाके पढ़ेगा। अब उन्हें ख्याल आया है कि यहाँ भी पढ़ सकता है वही। अब हर बंदा उड़ले का ये इतना नहीं है अमीर कि वो अपने बच्चों को और बच्चियों को अलीपुर पढ़ा सके। तो यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट ना होने के बराबर फीस है, और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे मैट्रिक और अब FSC लेवल तक पहुँच चुके हैं। हमारे बच्चे स्कूल के लिए पढ़ते हैं, रिज़ल्ट भी शानदार है, 100% रिज़ल्ट भी है अल्हम्दुलिल्लाह। ये शुरुआत है इस्माल का, इंशाल्लाह इदारा ज़रूर तरक्की करेगा। हाई क्वालिफाइड स्टाफ यहाँ पर मौजूद है, स्पेशली बच्चियों की तालीम के लिए, क्योंकि हर बंदा अपनी बच्चियों को अलीपुर नहीं पढ़ा सकता। ठीक है उस्मान, ये मैंने ऐड करना है। तो हसन पाशा साहब, इदारे के प्रिंसिपल के तौर पर काम करना कितना मुश्किल है और इदारे को कौन सी मुश्किलात दरपेश हैं, कैसे चला रहे हैं ये इदारा? लोग तो परेशान हैं देख के। ऐसा कुछ भी नहीं है। एज अ प्रिंसिपल वैसे इदारा खोलना आसान काम नहीं है, स्कूल चलाना ये आसान काम नहीं है, बहुत ही मुश्किल है। लेकिन इतना भी नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। हम ये 4 अरसे हो गए हैं, 5 साल हो गए हम इदारा चला रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से चला रहे हैं। मुझे कल की तरह दिन वो याद है जब 1 अप्रैल 2015 का जो स्कूल हमने ये इफ्ताह किया था, तो उस दिन कोई इदारा नहीं था इस पूरे इलाके में। आप देखें 2015 में जाएं तो कोई इदारा नहीं था, वाहिद इदारा, और वक्त की अशद ज़रूरत थी उस वक्त कि कोई एक प्राइवेट इदारा इधर हो जो बच्चियों को तालीम दे सके। भुएज तो जाते हैं, उनका मसला नहीं है इस इलाके में, वहाँ वो सुल्तानपुर, खैरपुर, अलीपुर तक जा सकते हैं, डेली जा सकते हैं। लेकिन गर्ल्स के लिए बहुत मुश्किल होता है। रोज़ाना एक आदमी अपना वक्त कीमती निकाल के मजदूरी न करे, वो डेली एक बच्ची को ले जाए
खैरपुर, सादात या सुल्तानपुर बहुत मुश्किल होता है। तो हमने ये दायरा खोला तो लोगों की खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था कि काश अब भी बहुत अप्रिशिएट किया था कि आज अब भी हमारे जो बच्चे हैं जो गरीब ख़ानदान हैं कि मुफ्त में तालीमी इदारा हासिल कर सकेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह वो कर भी रहे। उनके लिए कोई फीस का या इस किस्म का कोई ये दिक्कत नहीं है उनकी। जी हमारी वजह से अगर किसी की ज़िंदगी में इम्प्रूवमेंट आती है तो ये हमारे लिए बायस फ़ख्र है। काशिफ उमर साहब, मैं अभी करंट सिचुएशन के हवाले से आपसे बात करना चाहूँगा कि कोरोना वायरस है और दूसरी मरतबा इदारे बंद हुए हैं। इससे पहले भी 6 माह तकरीबन इदारे क्लोज़ रहे और अभी भी 1 मंथ होने वाला है कि इदारे बंद हैं। कि आप साइंस टीचर हैं, सरकारी तौर पर आप पढ़ाते हैं, क्या मुश्किलात अभी आ रही हैं, कैसे आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं? हुकूमत तो कह रही है पेपर तो हम वक्त पे ही लेंगे, जब पेपर वक्त पे लेंगे तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे अगर स्कूल बंद होंगे? हाँ, देखिए उस्मान, ये जो कोविड-19 की सूरत हाल है, मौजूदा सूरत हाल, इसमें तालीम के हवाले से बच्चों का बेड़ा गर्क हुआ पड़ा। एक गैर यकीनी सूरत हाल है। जो बच्चा पढ़ने वाला था, मेरिट वाला था, जिसने फोकस किया हुआ था, एक टारगेट रखा हुआ था, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, मेडिकल, पैरामेडिकल स्टाफ या इंजीनियरिंग या जो भी शोबे से वाबस्ता था या उसके ख्वाब थे, वो सारे चकनाचूर हो गए। गैर यकीनी सूरत हाल है। दूसरा ये है कि वो बच्चे, मुझे दुख होता है, पैनिक वो इस तरह होता है जब मैं अपने स्टूडेंट्स को, अब क्योंकि तालीम का तो और पूरी दुनिया के हालात आपके सामने हैं, दुख इस बात का होता है कि जब मैं अपने बच्चों को मजदूरी करते देखता हूँ, हालात भी ऐसे हैं, फाइनेंशियली क्राइसिस के हालात चल रहे हैं हर घर के, पूरे पाकिस्तान के, पूरी दुनिया के। इस वक्त फाइनेंशियली क्राइसिस बहुत ज़्यादा आ चुका है। अब मैं जब अपने स्टूडेंट्स को देखता हूँ मुझे दुख होता है। वालिदैन से मिला हूँ उनसे कि क्या करें, कहते हैं सर क्या करें, हम स्कूल बंद है, बच्चे चलो कुछ ना कुछ कर लेते हैं मेहनत में। तो अल-मुख्तसर ये कि तालीम के हवाले से एक गैर यकीनी सूरत हाल है और पेपर सुन रहे हैं कि गवर्नमेंट शायद 1 जून तक पेपर एक्सटेंड कर ले। बाहर कैफ वो मेरिट, वो फ़िज़ा कायम नहीं रही है, गैर यकीनी सूरत है। जी माशाल्लाह, अगर आपके बात होती रहे ना, बहुत ही मज़ा आ रहा है आपसे। शुएब साहब, मैं आपकी ज़ाती ज़िंदगी से एक सवाल करूँगा कि माशाल्लाह आप अभी तो यंग हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आगे आप तो स्कूल ही चला रहे हैं, माशाल्लाह टीचर भी हैं, आगे आप क्या करना चाहते हैं? आप क्या करना चाहते हैं और आप सोचते हैं कि जो काम इन्होंने नहीं किया वो मैं कर सकता हूँ, तो वो चीज़। अब इन्होंने तो कोई काम छोड़ा नहीं है जो मैं करूँ। ये अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो स्कूल में खड़े हैं, पढ़ा भी रहे हैं, तो मेरे फ्यूचर की प्लानिंग यही है कि इसी हवाले से जो है ना स्कूल को मज़ीद जितनी दे सके अपना वक्त दूँ और इसे मज़ीद बेहतर से बेहतर सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी की तरफ, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह रजिस्टर्ड इदारा करा दिया है सर ने, तो इसी तरह ये स्कूल की फलाई इसमें बेहतरी के लिए मज़ीद काम करना चाहता हूँ। जितनी भी मेरी ज़िंदगी पड़ी है तो जितने भी दिन पड़े हैं, अभी तो यंग नहीं है, 25 साल उम्र हो गई है, 50 वाला तो बूढ़ा था, हमने आधी बचाई हुई है। बाकी हमने गुजार दी है। मतलब आप कहना चाहते हैं लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। शाम ही क्या बात है, बस यही है, अब शाम ही है। तो ये सवाल तो होते रहेंगे। मैं चाहता हूँ कि जिस मकसद से आपको बुलाया है कि थोड़ी गपशप हो, लोग इंटरेस्ट लें प्रोग्राम में, तो शुएब अहमद साहब मैं आपके पास आता हूँ कि कोई ऐसा वाक़या कि जो रूनुमा हुआ हो इनके साथ और आप चश्मदीद गवाह हैं। उस वाक़े के चश्मदीद गवाह हों, जैसे कमर सर ने कहा। ये तो एक बहुत मुश्किल है, ये दरिया को कोले में बंद करना पड़ेगा मुझे। ये हमारे एक वाक़या मैं सुना देता हूँ कि तौकीर साहब जो उस वक्त हमारे रूममेट थे और हमारे स्टूडेंट लाइफ की बात है, स्टूडेंट लाइफ की बात है, तो अलीपुर हम रहते थे, तो ये सारे मैसेज चार्ज भी थे, मकान इंचार्ज सारा कुछ इन्हीं के पास है। तो ये आज से नहीं है, ये अरसे से हमारे ऊपर हुक्मरानी करते हैं। मुसल्लत है ये एस्टेब्लिशमेंट की वजह से। मखसूस टोला आपके ऊपर मुसल्लत है। मुसल्लत है।
تو ہم سارے جو باقی جتنے بھی دوست ہیں ہم سارے سیکنڈری ادارے تھے, ہم وہاں پہ چلے جاتے تھے. ہم آتے تھے کوئی 5:30 بجے واپس. تو سر نے آگے میس کا انچارج یہ سارا سامان کرنا ہوتا تھا کام, یہ وہ نگران تھے. جو باقی جو تھے اکیڈمیز والے وہ دوست اپنی ڈیوٹی کرتے تھے, کھانا تیار کرنا ہوتا تھا. ہماری جو ڈیوٹی تھی وہ ہم اپنی کار کے جاتے تھے. بھئی اب ایک دن ایسا ہوا کہ ہم آئے 5 بجے تو دیکھا جہاں پہ کچن پہ ہم سارا دن کے بھوکے ہوتے تھے, تھکے ہارے ہیں, اساتذہ کرام سے ڈیلنگ چیلنگ کا وہ بھی مار شار کھا کے آتے ہیں جیسے ہوتا ہے فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں. اب ہم آئے تو دیکھا ہے کوئی چیز پک رہی ہے لیکن کچن کو اندر سے کنڈی ہے, اندر خفیہ کام ہو رہا ہے, خفیہ کام ہو رہا ہے. بھئی اس میں ہمارے بھی جو ہے وہ کنٹریبیوشن ہے. ہم بھی ارے بھی ایسی صورتحال ہوگی بھی ایسا کیا بن رہا ہے جو آج کنڈی لگی ہوئی ہے, معمول کے خلاف ہے. روزانہ تو ہم دیکھتے تھے. چلو بھی ٹھیک ہے بیٹھے. ہمارا ایک دوست تھا بڑا آپ کا بھی چچا بھی ہے, ذیشان کپور تھا, وہ بار بار کہہ رہا ہے بھئی یہ کیا ہو رہا ہے. تو پھر بتا تو دے, کہتا ہے نہیں بھئی آج آپ کو بہت ہی مزیدار لذیذ کھانا دیا جا رہا ہے. ہم سارے ہماری بھوک میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے, ادھر سے سسپینس بھی بڑھتا جا رہا ہے. پتہ نہیں آج کیا پک رہا ہے, کوئی مچھی نہ پک رہی ہو اندر کنڈی کے اندر, کنڈی کے اندر. اب ہم بیٹھے میس کے لیے بیٹھ گئے. اب کھانا کھانے کے لیے ٹائم ہو گیا. جب ہم سارے بیٹھے دیکھا تو یہ توقیر صاحب اپنے دست مبارک سے اتنا بڑا پتیلا اٹھا کے آ رہے ہیں. اس میں ہمارے اور بھوک میں اضافہ ہوگا. بھئی آپ جیسے ہی اس کا ڈھکن کھلا تو وہ سوجی تھی. وہ سوجی پکی ہوئی ہے. ہم سارے ذیشان تھا, سارے بھوک سے مارے, سارا دن کی بھوک ہے اور پکی ہوئی ہے آگے سوجی. تو ذیشان نے اس نے مزے کی بات کی, اس نے کہا بھئی کیونکہ صاحب مجھے یہ بتائیں, اس نے سرائکی میں کہا جیسے ہماری مادری زبان کہ تسا میں کوئی نہ سوچوں کہ کئی کدی آنکھیں جو میں کو بھوک لگی میں سجی کرنا, اگر بھوک لگی میں ٹکر کرنا. یہ ایک ہمارے جو اسٹوڈنٹ لائف کا ایک بڑا شاندار اور مزہ ہے ماشاءاللہ. بہت ہی سوجی کے نام سے ہم یاد ہیں. کاشف کمار صاحب, ذیشان غفور صاحب کا نام آیا اور آپ نے کہا اللہ معاف کرے, ان سے اتنی محبت کی وجہ کیا ہے, بیان کریں گے؟ ہاں, ان سے کافی کلوزنس ہے, اتنی کلوزنس ہے کہ ہمیں خود کو ڈر لگتا ہے. دوسرا ان کی پرسنالٹیز اور ان کے خیالات اور ان کے نظریات ایسے ہے جیسے مقناطیس مخالف سے انہیں دھکا دیتا ہے. بہت ہی اچھے انسان ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز کرے. ویری نائس گائے, فینٹاسٹک. جہاں بھی گیا اپنا نام منوا کر آیا. تو توقیر حسین پاجا صاحب, ہم نے سنا ہے کہ آپ کے ساتھ ایک واقعہ رونما ہوا تھا کہ آپ جاتے تھے نا انڈس ریور پہ نا ایسے نہانے کے لیے, تو کوئی جیسے موبائل تھے اس دور میں نئے نئے, تو آپ چاہتے تھے کہ کوئی ویڈیو ہی بنا لیں تاکہ آگے کام آئے گی, ہم دیکھیں گے فیوچر میں. تو سنا ہے کہ فلم کی شوٹنگ ہو رہی تھی کوئی, تو تقریباً کوئی 2 گھنٹے کی فلم کی شوٹنگ ہوئی. ایک شخص کے پاس موبائل تھا, کیمرہ تھا, اور جب شوٹنگ ختم ہوئی تو آپ نے کہا چلو ویڈیو دیکھ ہی لیں. جب شوٹنگ ختم ہوئی تو دیکھا گیا کہ 2 سیکنڈ کی ویڈیو بنی ہوئی ہے. بندہ کون ہے؟ اس بندے کا نام بتا دیں, کا نام بتائیں. اس بندے کا نام بتا دیں اور یہ واقعہ بھی بتا دیں, تو اس کے بعد پھر کیا ماحول بنا تھا؟ عثمان بھائی بات یوں ہے کہ ایک مرتبہ ہم انڈس ریور پہ گئے تو وہاں کہا کہ ہم فلم کی شوٹنگ کرتے ہیں. تو فلم کی شوٹنگ کے بعد ہم کبڈی کھیلیں گے. کبڈی کا میچ تھا تو حاجی صادق تھا, باقی بھی مالک تھا, باقی بھی تھے لوگ. کمار صاحب بھی تھے. ہاں کہاں سارے تھے موجود, سارے نوجوان جتنے بھی ہیں نا اللہ یہ اللہ سارے سارے تھے. ایک پورا ایک جھنڈ موجود تھا. اصل میں 2010 تک یہ جتنا بھی ماحول ہوتا جہاں بھی ہوتے یہ سارے ہم ہوتے, کور کمیٹی کے ممبر ہم سارے ہوتے تھے. 2010 کے بعد پھر ہم آرگنائزر کبھی کبھی ملتے ہیں, جیسے آج اتفاق ہوا ہے. تو کبڈی کا میچ ہوا. اس کے بعد تو کیمرہ مین کس کو سلیکٹ کریں؟ سب نے کہا توقیر ہوا.
इनकी काबिलियत को देखते हुए हमने मुझे इनको पाशा select बुलाते किया। हैं तो साहब ने कहा पाशा, मैंने कहा मैं हाजिर हूँ। अब मैंने मोबाइल सारी उठा के इनकी शुरू कर सलाहियत दी दिखाने के लिए। अपनी सलाह दिखाने के लिए। फिर फिल्म की शूटिंग होती गई, हम रिकॉर्ड करते गए, एक्शन बनाते हर फुल एक्शन उसी होते वाले थे। और पैसा साहब ऐसे बिल्कुल ऐसे करते थे, फिर ऐसे एंगल से, उसके बाद फिर ऐसे। जब एंड हुई शूटिंग देखा तो सिर्फ 2 सेकंड की वीडियो थी। 1 घंटा हमने मेहनत की। 2 सेकंड की वीडियो बनी हुई थी। 1 घंटा हमने मेहनत की, सबने मेहनत की और बड़े ज़बरदस्त करके मेहनत की। और ये इन्होंने भी मेहनत की, ऐसे बैठ जाके मुख्तलिफ एंगल आपने से। तो एक्टिंग की होगी कि शायद बॉलीवुड का टिकट आ जाए। लास्ट में जब देखा सारे इकट्ठे हो गए, चलो देखते हैं मोबाइल क्या हुआ है, क्या देख कैसे किया है, तो देखा तो सिर्फ 2 सेकंड की वीडियो मौजूद है। That's all। दरअसल वो भी नीचे जमीन वाली सिर्फ इतना बस। ये तो मैं एक ऐड कर दूं, दरअसल ये दुनिया के 7 अजूबे हैं। 8वां अजूबा रोजाना तौकीर साहब एक कंपनी के साथ कर देते हैं रोजाना। एक मरतबा ये एक और वाक़या है कि तौकीर साहब गए नीचे, कुछ छुट्टियाँ थी मेरे ख्याल में सरमा की या गर्मा की, मौसम सरमा की छुट्टियाँ थी। तो वहाँ पे मकान पे हम रह रहे थे, तौकीर साहब गए नीचे अखबार पढ़े। वहाँ पे अखबार पर गए, लिखा हुआ था सकी सरवर का, और आगे लिखा हुआ 15। आगे महीना पढ़ने के साथ ने सहमत नहीं की कि 15 जून जुलाई दिसंबर कौन सा, नहीं बस 15 पढ़े। और देखा कि आज क्या तारीख है, आज भी 13 है। फौरन मकान पे वही आ जाओ, क्या आसिफ और बिलाल थे बिलाल थे भाई, आ जाओ हम वो जा मेरे रहे हैं। जिगरी दुश्मन। कहते हैं, आ जाओ आज हम सके सरवर मेले पे जा रहे हैं। फौरन तैयारी हुई कि बस हमारे पास अभी शाम में हमने अल फरीद पे बैठना है, कल सुबह मेला है। फौरन तैयारी हुई, बैठ रहे अल फरीद पे। रास्ते में सोच भी रहे हैं कि ना कोई मेले पे बस जा रही है ना कोई है। वहाँ पे गए, वहाँ तो खाली था। तो दरबार पे किसी से पूछा कि भाई कलीफे से पूछा भाई आज यहाँ पे मेला होना था, क्यों कैंसल है? उसने कहा आज तो नहीं होना था। तो तभी साहब ने फौरन कहा नहीं 15 को नहीं होना था। उसने कहा नहीं भाई 15 अगले महीने की। 15 मार्च की थी और ये 15 फरवरी को चले गए। कमर साहब कोई ऐसा वाक़या कि मुझे तो नहीं लगता कि पेश आया हो, कभी इनसे लड़ाई हो गई हो? नहीं, लड़ाई असूल पर होती थी। लड़ाई भी हल्की फुल्की, हल्का फुल्का तशद्दुद ऐसे है कि एक मरतबा कबूतर चोरी करते पकड़े गए। तकरीबन उम्र थी शायद 8-9 साल, मेरी और काविश साहब की 8-9 साल के दरमियान एज थी शायद उस वक्त। कबूतर चोरी करते हुए हल्की फुल्की ऐसे हाथापाई हुई। उसके बाद गड़ंग में लड़ाई कभी नहीं हुई, असूलों पर बहस हुई है हमेशा। 2-3 साल जितने भी क्रिकेट खेले हैं इनके साथ असूलन बहस हुई, बाकी एक कुछ थे। असूलन मतलब मैच के रेगुलेशंस के हवाले से इस तरह की हल्की फुल्की हो जाती। कभी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा वाक़या पेश नहीं हुआ लड़ाई का किसी के साथ नहीं। तकरीबन हम में से किसी की लड़ाई किसी के साथ नहीं। शुएब अजमल साहब, हाँ या ना में जवाब देना है आपने। ये मुश्किल है। ये कैद करने वाली बात है। और देना भी सच है, हाँ या ना में जवाब हो। मैं आपसे यही चाहूँगा कि कभी किसी को थप्पड़ मारा है? कभी किसी की चुगली खाई हो? हाँ स्टूडेंट जब स्टूडेंट है। कभी झूठ बोला है बोल देते हैं कई किसी को बार, बचाने के लिए, वो तो कई हो गए, किसी को फंसाने के लिए? वो नहीं बोला, किसी को याद करके रोए हो कभी? नहीं नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह। पाशा सर, किसी को थप्पड़ मारा है कभी? हाँ। किसको मारा है? बच गए। तीनों टीचर मुझसे नहीं पूछो वो दरअसल वो ये जो किसी को थप्पड़ मारा है वो मैं जवाब दे देता हूँ, इन दोनों ने घर भी जाना है। कभी झूठ बोला हो और पकड़े गए हो? कभी किसी की याद में रोए हैं? बचपन में कभी बचपन में कि चलो आज रो ही लेते हैं? हाँ। गमा सर, कभी किसी की चुगली खाई है? हाँ, स्टूडेंट लाइफ में बहुत ज़्यादा, स्टूडेंट लाइफ में बहुत ज़्यादा इस तरह यार की कोई चिढ़ थी उनसे कि हाँ यार ये क्यों हो रहा है हाँ, ऐसा? कुछ बच्चों के साथ नफरत थी क्लास करके। कभी किसी को थप्पड़ मारा हो बच्चों के अलावा? आप नहीं, टीचर हैं, हम जानते हैं। तकरीबन किसी के साथ लड़ाई नहीं।
नहीं हुई? नहीं, कभी झूठ बोलो। स्टूडेंट लाइफ अभी चल जाता है, हेडमास्टर साहब। बादशाह साहब, शख्सियात के नाम लूँगा, उनके बारे में कोई एक जुमला या मशवरा या कोई पैगाम आप दे सकते हैं। शख्सियात का नाम मैं लूँगा। ज़ीशान गफूर साहब। सीक्वेंस पैदा कर रहे हो। मुश्किल सवाल पूछ। ज़ीशान गफूर साहब। के बारे हम नहीं बोल सकते, हमारे घर का मामला है। नहीं, वो उसके बारे में वो रिएक्शन से डाल रहे हैं। चलो सियासत से ही पूछ लेते हैं। फजल और रहमान साहब। डीजल साहब। आदिल जरदारी। क्राफ्ट। और आमिर तलाल हमारे MNA। आमिर तलाल बात को समझ जाए। ठीक ही है, 50-50 काम भी कराते हैं, खाते भी हैं। शेख रशीद। शेख रशीद बहुत ही अच्छे आदमी हैं, सिर्फ वही तो है। शोएब अजमल साहब। सर, GB खान। मेरा डिग्री है। मरीम नवाज। नो, आसवा भुट्टो। आई लाइक। Why I like? You like? Do you have any strong reason? बिकॉज she is daughter of Benazir Bhutto. मासूम। हमारे MPS साहब मखदूम रजा बुखारी। सो है, ठीक है। उनके भाई काजिम रजा बुखारी। वो तो हमारे जैसे ही हैं। कमा साहब, आपसे कंपनी इम्तियाज रियाज। सबके साथ सबके बारे में पूछे। इम्तियाज रियाज। दबांग मैं डॉक्टर राशिद कलीम। विजनरी लीडर, एज अ लीडर मैं उसको लीडर बहुत अच्छे तरीके से। शहनशाह काबज। गब्बार इज बैक। नवाज शरीफ। नेल्सन गजरेला। शबाज शरीफ। मेरा नाम शबाज शरीफ। यंग लीडर बिलावल भुट्टो जरदारी। ना 3 में ना 13 में। जुग्गू खान। ही इज अ नाइस गाय। उस्मान खान। हाँ, उस्मान खान। उस्मान बुजदार क्या? उस्मान पहले खान- उस्मान बुजदार। गाय उस्मान खान। उस्मान खान। जो मैं उस्मान खान के बारे में सोचता था, एक शर्मीला लड़का, ठीक है ना, चुप रहने वाला, आज वो एंकर बन गया है अल्हम्दुलिल्लाह। कॉन्फिडेंस लेवल इसका हाई हो गया है और ये अपने टीचर्स का भी इंटरव्यू ले लेता है। ये इसके अंदर कैसे इतनी तब्दीलियाँ आई? और अल्हम्दुलिल्लाह मैं देख रहा हूँ, आपके प्रोग्राम भी देखता हूँ। ये अब देखिए उस लड़के कितने नौजवान हैं, बहुत ज़्यादा है, किसी के अंदर सलाहियत नहीं है लाइव आने की, एक जिगर चाहिए होता है। यू हैव डन इट, आपने वो कर दिखाया है। ये तो शुरुआत है, ज़ाहिर बात है, गलतियाँ तो हर किसी से होती हैं, माइनर इसको इग्नोर करें, लेकिन योर कॉन्फिडेंस लेवल इज़ अबव, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई है और यू हैव टू कीप दीज गुड थिंग्स। अल्हम्दुलिल्लाह यूनिवर्सिटी आप ग्रेजुएट को मतलब एडमिशन प्रॉपर है आपको इस चीज़ पर काफ़ी फोकस करना चाहिए और बहुत से वसी इसके कैरियर है। नेक्स्ट और भी कुछ मरीम नवाज। आप नागिन है खतून। हाँ सही बात है, वज़ीर आज़म बनता हुआ देख रहे हैं आप? कभी भी नहीं इंशाअल्लाह कभी नहीं बनेगा। बादशाह साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वज़ीर आज़म बन सकते हैं? बन सकते हैं। इमरान खान से मुतमईन है अब तक की कारकर्दगी से? हाँ, मुतमईन है उसकी अपनी कारकर्दगी से, टीम से नहीं। इमरान खान। हाँ, उसकी अपनी कारकर्दगी से उसके साथ हम हमेशा मुतमईन हैं, पहली बात। दूसरी ये कि खामियाँ तो हर इंसान में होती हैं। ब्यूरोक्रेसी जो इमरान खान से कंट्रोल नहीं होगी, ये जो 19वें 20वें 21-22 लेवल के ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, ACDC और एट्सेट्रा, ये इनसे कंट्रोल में नहीं होती। जब
अगर इमरान खान ब्यूरोक्रेट्स को कंट्रोल कर ले, पूरा पाकिस्तान कंट्रोल हो जाएगा। सपोज़ करो 50 रुपये किलो वाला आलू 150 रुपये में बेच रहा है, क्या ACDC को नहीं पता कि ये आर्टिफिशियल महंगाई बढ़ रही है? वहाँ से इस्लामाबाद से डेली एक मेल आती है कि कंट्रोल करो मंडियों में जाकर, सपोज़ कर रहा हूँ कि कीमतों को कंट्रोल करो। ये फैक्स उठाते हैं, रद्दी की टोकरी में फेंक देते हैं। ये रीज़न है, दिस इज़ द रूट काज। ब्यूरोक्रेसी इससे कंट्रोल में नहीं है। शकील गुपान इज़ वेरी नाइस, वेल पर्सनल, वेल पर्सन। पाशा साहब, मोहम्मद बाशी नंबरदार साहब, बहुत ही अच्छे उर्ला की कह लीडर दिया थे, था, लीडर उर्ला की हैं कह दिया था। और बानी लीडर हैं। उर्ला। हाँ मैं मोहम्मद बख्श खान साहब को उर्ला के कायदे अज़म के तौर पर देख रहा हूँ। मैं आपसे सबसे पहले शुएब साहब आपके पास आता हूँ। आपने इन दोनों के बारे में बताना है कि कौन क्या है। औलाद शुएब साहब, ओवर टू यू। दोनों में से सबसे झूठा काशिफ भाई। कैसे, वुड यू लाइक टू एक्सप्लेन? अभी तो कहा है कि मैं सबसे ज़्यादा ठीक हूँ। सबसे प्यारा तो कैसा? ये ना इंसाफ है। हम धान की तरह ना रोएंगे, एहतजाज करेंगे। एक साथ होते हैं ज़्यादातर इसलिए। वो ज़्यादातर वक्त गुजरता है दिन क्या। इसका जवाब तो मैं शायद जान चुका हूँ। फनकार कौन है दोनों में से? मैं मैं इसको कहते हैं जलन। काशिफ साहब ये सोशल मीडिया के सबसे बड़े कलाकार हैं, बल्कि अल्लाह माफ़। कलाकार। पाशा साहब, दोनों में से सबसे सच्चा? ये ना इंसाफ। सुने मैं आई ऑब्जेक्ट मिला। ये दो है, मैं अकेला। नहीं, ये सवाल रहने तो रहने दे। बराबर है हम दोनों जुड़े। दोनों में से कम अकल कौन है? कम अकल दोनों में से कौन है? काशिफ कुमार साहब, सबसे झूठा दोनों में से? दोनों में से अक्लमंद कौन है? उसका नाम नहीं नेगेटिव में आएगा। दूसरा तो वही है। फनकार वही बैठा। जी माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हुआ दोनों के साथ। आइंदा भी मैं उम्मीद करता हूँ कि दोनों जब भी हम बुलाएंगे मौका देंगे। तो काशिफ कुमार साहब, हमारे प्रोग्राम का आखिरी जो सेशन होता है वो होता है आखिरी बात। तो देखने वालों से आखिरी बात आप क्या करना चाहते हैं? जस्ट इन वन। हाँ, जस्ट इन वन मिनट ये है कि मैं नौजवान को एक पैगाम देना चाहता हूँ। वो नौजवान जो स्टूडेंट हैं 9th क्लास 10th क्लास फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर एंड सो सीरियस नहीं है, मैं उनको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि खुदारा सीरियस हो जाएं, स्टडी पर फोकस करें, अपना मकाम पहचानें कि जाना कहाँ है, कर क्या रहे हो, रिक्वायरमेंट क्या है वक्त की, और आप लोग कर क्या रहे हो। अपने आप को एज अ गुड स्टूडेंट शो करें। That's all. शुक्रिया। तौकीर पाशा साहब, आखिरी बात देखने वालों से क्या कहेंगे? हमारा प्रोग्राम तो स्टूडेंट से है, उनसे हम उनको ही पैगाम देना चाहते हैं कि बिग सिटीज़ में वहाँ सारा दिन बच्चे जो होते हैं तालीम पे फोकस करते हैं, देहात में खेल की तरफ सारा दिन रुझान होता है। तो इधर खेल की बात या खेल की तरफ ना जाए, उधर 24 में से 16 घंटे स्टडी करते हैं और इधर 24 में से 1 घंटा भी स्टडी को नहीं फोकस करते हैं। लेकिन अब भी ये टूर्नामेंट शुरू हो रहा है क्रिकेट का, वॉलीबॉल का, इस तरफ मत जाएं। नौजवान बाकी जो प्रोफेशनल या बाकी जो लोग हैं वो तो खेलें, घंटा डेढ़ घंटा खेलने कोई मसला नहीं है, सारा दिन नॉन सीरियस ना रहे। इनका कहने का मकसद यही है कि सारा अभी दिन ऑनलाइन ये तालीम non-serious। जारी है, तो हम इलाके में जाते हैं, देखते हैं तो सारा दिन देख बच्चे खेल रहे हैं। शोएब अजमल हमारे- साहब, आज की आप जान
جی ہمارے اسٹوڈنٹ سیریس نہیں رہتے، ان کا فوکس نہیں ہے، جانا کہاں ہے، ایک تو شرم کر جاتے ہیں، پوچھتے نہیں ہیں، کنسیلنگ نہیں کرتے کہ آگے نیکسٹ کرنا کیا ہے، کون سے شعبے میں جانا چاہیے، مطلب ٹچ میں نہیں رہتے، گائیڈ لائن پراپر لیتے نہیں ہیں اور اپنے شرم کے اندر ہی رہتے ہیں. یہ ان سے مطلب مجھے تھوڑا سا گلا ہے. شعیب صاحب آخری بات کیا کہیں گے آپ دیکھنے والوں سے؟ میں دیکھنے والوں سے آخری یہی بات کہوں گا کہ جو بھی جس بھی شعبے میں ہے، اپنا شعبے میں جو اپنا کام ہے، ڈیوٹی ہے، اس کا فرض ہے، وہ ایمانداری سے کرے. اسٹوڈنٹ ہے تو وہ اپنا کام پڑھائی ایماندار سے کرے، جو لیبر ہے تو وہ اسی حوالے سے، کیونکہ آخرت میں بھی اپنے فرائض کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو میں ان تمام سے یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنی ڈیوٹی ہے وہ ایماندار سے کرے. تو ناظرین دیکھتے آنکھیں، سنتے کانوں، اتارے گا جس کا سلام. تو ناظرین یہی تھا ہمارا آج کا پروگرام مخاطب اسپیشل کے ٹائٹل سے جو آج ہم نے نشر کیا. تو جاتے جاتے میں چاہوں گا کہ تینوں مہمان کوئی شعر سنا دیں. شعیب صاحب کوئی شعر ذہن میں آ رہا ہے ابھی؟ میں شعر سناتا ہوں کہ کرو کاجبی پہ سر کفن میرے قاتلوں کو گمانا ہو کہ غرور عشق کا بانگ پن پس مرگ ہم نے بھلا دیا. کما صاحب یہ فخر تو حاصل ہے، برے ہیں کہ بھلے ہیں، 2-4 قدم ہم بھی تیرے ساتھ چلے ہیں. پاشا صاحب آپ تو کچھ آج چھیڑ ہی دیں. نہیں اس جو پیغام دیا یوتھ کو اسی کے بارے میں آئے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا. ناظرین یہی تھا آج کا ہمارا پروگرام. میں تینوں مہمانوں کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں اور میں پھر کہوں گا کہ اٹس آنر فار می کہ میں ان جیسی شخصیات کے ساتھ بیٹھا ہوں اور بات کر سکتا ہوں. یہ میرے لیے کسی خوشی سے کم نہیں ہے. میں بھی بتاتا چلوں کہ جب میں نے یہ میرے ذہن میں خیال آیا مخاطب کے حوالے سے، پروگرام کے حوالے سے، تو میں اس وقت اکیلا تھا. اب مجھ سے لوگ مل کر مجھے روکتے ہیں، مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیسے خیال ذہن میں آیا، مجھ سے مل رہے ہیں. تینوں شخصیات بھی میرے ساتھ تعاون کر رہی ہیں. اس کے علاوہ ڈاکٹر راشد خلیل صاحب، ذیشان غفور صاحب کے علاوہ بھی بہت سی شخصیات ہیں جو مجھے فوکس کرتی ہیں اور مجھے اس پہ مزید بھی ہم پروگرام کریں گے آگے جا کے. تو مجھے بھی موقع کی مناسبت سے ایک شعر یاد آ رہا ہے، میں بھی سنا دیتا ہوں. ضرور. کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ ملتے گئے اور کارواں بنتا گیا. میں اسی آخری شعر سے آپ سے، ان تینوں مہمانوں سے اور دیکھنے والوں سے اجازت چاہوں گا. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی ہماری اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ، نئے مہمانوں کے ساتھ. دیکھنا نہ بھولیے مخاطب عثمان کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے پروگرام میں.